वेट सर, प्लीज एक ग्रुप फोटो प्लीज कराइए। आइए सारे वेट। Festival that marks the birth of Lord Krishna. Can we have a huge round of applause for our chief guest, Shri Amol Veera Prabhuji. Medical College and Hospital, it is our absolute pleasure to welcome all of you to this joyous celebration of Janmashtami, a festival that resonates with love, devotion and the spirit of harmony. Janmashtami is a festival that marks the birth of Lord Krishna, the 8th incarnation of Lord Vishnu, who is revered as the epitome of love, wisdom and divine playfulness. His teachings as imparted in the Bhagavad Gita continue to guide us through the trials and tribulations of life, inspiring us to live with righteousness and integrity. This day is not just about the birth of Krishna. It is a reminder of the values he stood for. Devotion, courage, and the triumph of good over evil. It is a festival that brings us together, fostering a sense of unity and shared purpose. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तक बुराई के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु आएंगे। So, as we celebrate today's holy festival, let us vanquish the evil within our heart and live together in harmony. As we gather here today to celebrate Janmashtami, it is impossible not to think about the incredible event that we had last year. The enthusiasm and devotion were palpable as our college community came together to create a celebration that was nothing short of magical. Last year, we got the golden opportunity to listen to the wise words of Shri Keshav Murari Das Ji, who enlightened us about the role of Bhagavad Gita in medical life. With the utmost respect and admiration, I extend a sincere invitation to each of you to join us in honoring our esteemed guests of appreciation at this event. Their exemplary dedication and unwavering commitment deserve our utmost recognition. Let us come together to praise their remarkable contribution with the respect and appreciation they rightfully deserve. Firstly, we would like to thank Dr. Poonam Narang, Director Principal and Medical Director, Dr. Babasaheb Ambedkar Medical College and Hospital, and Dr. Neeta Vardhan, our Honorable Academic Coordinator and Head of Department Pharmacology, who could unfortunately not be here today. Their support is highly appreciated and we are indebted to their benevolence for allowing us to conduct today's festivities. Now we would like to welcome Anita Chawla ma'am, Vijay Dhankar sir, Vivek Rana sir, Vivek Sagar sir, Minakshi ma'am, Dr. Sumit Chuk sir, Dr. Vikas Kumar sir, and Dr. Vinita Vadva ma'am. Let's have a huge round of applause to them. It is only through their support that we have been able to organize today's event. We know how eager everyone has been for today's event. So let us not delay further and let's have a huge round of applause for our guest speaker, Shri Amol Veera Prabhuji. Amol Veera Prabhuji is a monk, motivational speaker, lifestyle coach and engineer who is recognized for his compelling, enlightening talks frequently enhanced with a touch of humor. He is currently the head of ISKCON Dwarka and has served as a monk in ISKCON for the last 20 years. Sir, we are very grateful to you for gracing today's occasion. We would like to request Dr. Vijay Dhankar, Head of Department of Forensic Medicine, to welcome you to our college with a shawl and a planter.
जी सर। सर एक बार साथ में। यस प्लीज। वेट करेंगे सर, वेट। Can we have a huge round of applause? Now we would like to play a short video showing us how a day in the life of Prabhuji is like. Let's rewind. Satu preto.
for us to manage, and in such situation, we often end up overthinking and suffering from intrusive and negative thoughts. Sir, we request you to take the stage and enlighten us with your profound words of wisdom about how to manage overthinking. Let us have a huge round of applause. Hare Krishna. Thank you everyone. Please sit down. Thank you. Okay, ये सीटी मैंने मारना, ये सीटी इससे है, माइक से. Okay, so आज जिस टॉपिक हम चर्चा करने वाले हैं, which is very special topic. So firstly, I am very grateful to the management who have invited me to this prestigious esteemed college. Where so many doctors, they are getting nicely groomed. So thank you, sincere gratitude. Hare Krishna. Okay, so overthinking. आपने किस को ये वैसे फिनोमेना एक्सपीरियंस किया आपने कभी? Overthinking. जिन्होंने नहीं किया वो छुपा रहे हैं. छोड़ो यार, काहे को पोल खोले अपनी. But yes, overthinking nowadays is so common that currently in India 87% people have reported that they are victim of overthinking. बाकी 13% थोड़े से lost है, but they are also doing overthinking in their own world. But yes, overthinking is quite common. जैसे कई प्रकार के OCDs होते हैं. कोई बताना चाहे? What are different kinds of OCDs? जैसे कई को साफ सफाई का OCD होता है. अगर गंदगी है, then they become restless. और किस तरह के होते हैं OCDs? साफ सफाई का OCD और हाथ धोने का, यस, कुछ ऐसा हाथ धो बार हाथ ही धोते रहते हो, यस. और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. हल्की सी डिस्टर्बेंस हुई, दे आर सुपर डिस्टर्ब्ड, यस. और हाँ, यस, नीचे गए फिर ऊपर आएंगे, ताला है, खींचे देखें, फिर नीचे पता है दोबारा खींचा, ठीक से नहीं खींचा, दोबारा ऐसा हो गया. OCD, यस. इस तरह से एक बड़ा क्रॉनिक OCD है, which is very prevalent, is overthinking. Yes. अच्छा, overthinking, ये thinking का मैकेनिज्म किससे आता है? माइंड से, right? So mind हमारा कैसे फंक्शन करता है? So mind functions in 4 different ways. So we can put it as an acronym, MIND. M stands for magnify the problem. मन का काम क्या है? चीजों को बड़ा करके दिखाना. होती प्रॉब्लम छोटी सी है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, वो मन दिखाता है, देख कितनी बड़ी प्रॉब्लम है रे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. आफ्टर सम टाइम इफ यू लुक बैक एंड यू कॉन्टेम्पलेट, तो आपको लगता है क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने कुछ ओवर रिएक्ट नहीं कर दिया वैसे. ऐसा होता है, ऐसा होता है. सो चीजों को बड़ा दिखाना किसका काम है? मन का. जैसे मान लो किसी ने आप कहना नहीं माना, तो मन कहेगा देखा, हो गई ना पॉलिटिक्स, हो गई ना पॉलिटिक्स. कितनी पॉलिटिक्स है यहाँ पर, कितनी पॉलिटिक्स है यहाँ पर हुआ क्या? सिर्फ आपको कहना नहीं माना गया, किसी और की ओपिनियन ले ली गई, आपकी ओपिनियन को कंसीडर नहीं किया गया, एंड दैट्स व्हाई देयर इज सो मच पॉलिटिक्स. एक समय मेरे मंदिर में एक व्यक्ति आया था, उसने बोला, कहता प्रभु जी आपको पता आपके मंदिर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? भगवान का नाम चल रहा है, प्रसाद बढ़ रहा है, भगवान के दर्शन चल रहे हैं. नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, आप अंधे हो गए हैं. मैंने कहा अच्छा, तो आप बताओ फिर क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स चल रही है. मैंने कहा वैसे तो और कहीं नहीं चल रही, लेकिन एक जगह तो पॉलिटिक्स जरूर चल रही है, तुम्हारे खोपड़े के अंदर. तो ये हमारा मन है which creates all of this illusory pictures कि देखो क्या चल रहा है. होता इश्यू छोटा सा, उसको बड़ा दिखाता कौन? मन. मान लो कॉलेज के दिन है, इसने दिल तोड़ दिया आपका, किसी और के साथ चली गई, किसी और के साथ चला गया, ठीक है, उसकी इच्छा है, ऑलराइट, मूव ऑन. लेकिन उस चीज को बड़ा कर दिखाएगा मन, बस अब कुछ नहीं है, जिंदगी में ना कोई रंग है ना ढंग है, जिंदगी कटी पतंग है, मर जाओ. कहाँ है गैंडा ब्रांड फिनाइल, कहाँ है? तो उसको बड़ा करके क्या दिखाता है? मन. यस. एनीथिंग व्हिच गिव्स मीनिंग टू एनी इवेंट इज माइंड. ऐसा. और आप देखो एक और मन का फंक्शन है, टू ऑलवेज रिमेन डिससैटिस्फाइड. आपके पास जो नहीं है उसके बारे में मन सोचता रहेगा. जो है उसको लेके नहीं सोचेगा, जो नहीं है उसको लेके यार ऐसा क्यों, काश, ऐसा क्यों, काश, ऐसा क्यों, काश. अरे फंस जाता है वो. तो इसलिए मन का एक और फंक्शन भी है, दैट माइंड रिमेन्स डिससैटिस्फाइड.
जैसे ना कभी कभी ना दांत में सॉफ्ट फंस जाती है तो जीभ बार बार कहाँ जाती है, जहाँ सॉफ्ट फंसी होती है वहां करते करते फिर बात करते यार फिर मैं बस यहां से निकले था कि जो अरे जीभ तो कहीं और भी घूम रहे नहीं, जहां सॉफ्ट फंसी है वो निकल ही नहीं, वो अटकी हुई है, आपके पास वो टूथपिक है नहीं, तो वही जीभ घूमती रहती है हट रहे। ऐसे ही पूरी जिंदगी में सब कुछ सही चल भी रहा हो, एक ही जगह जहां राड़ा वाड़ा हो रखा है, जहां पर पिन प्रिक है वहीं पर अरे जैसे मान लो किसी की शादी नहीं हो रही, उसको मांगली लड़की नहीं मिल रही, अरे यार लड़की नहीं मिल रही, हमको लड़की नहीं मिल रही, खाते हो गया है हमको लड़की नहीं मिल रही, हमको लड़की नहीं मिल रही, अच्छा पचा लिया तो हमको लड़की नहीं मिल रही, रात को सोते हैं लड़की कब मिलेगी। अच्छा सर आपको बहुत चीजें और भी दी हैं, आपको अच्छी हेल्थ दी है, अच्छी एजुकेशन, योर गुड लाइफ, अच्छा सब अच्छा है, पर ना तो जहां 100 फटकी होती है वहीं पर मन बार बार फंसा रहता है, and that is mind gets stuck in a loop। तो ये एक तरह का कहेंगे इट्स लाइक अ रिपीट टेलीकास्ट, तो रिपीट टेलीकास्ट में मन फंस जाता है, उसको बोलते हैं ओवरथिंकिंग। एक ही चीज को बार बार सोचना। अगर आप ओवरथिंकिंग करते हैं ना प्रोग्रेसिव वे, ये करेंगे फिर ऐसा कर लेंगे और फिर ऐसा प्लान रहेगा हमारा, फिर ये स्टेप रहेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसा कर लेंगे, ये बड़ी प्रोग्रेसिव ओवरथिंकिंग है। लेकिन हमारी होती है लूप में फंसने वाली ओवरथिंकिंग, उसी चीज बार बार किसने इंसल्ट कर दी, किसने गलत शब्द बोल दिए, फंस जाता है। ऐसा क्यों गलत है ना, ऐसा क्यों सबके सामने बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, बदतमीज कीड़े बड़े से लोगों को ऐसे कैसे बोल दिया, बदतमीज कीड़े बड़े से लोगों को ऐसे कैसे बोल दिया, बदतमीज कीड़े बड़े से लोगों को। अल्लाह 24 घंटे इसी में ही हो गया, रिपीट टेलीकास्ट। That is mind। अब हॉस्पिटल में हमारे शरीर का इलाज तो होता है, ये मन का इलाज नहीं हो जाए भाई। अरे हमने एक हॉस्पिटल बोला यहाँ पर, जैसे इस्कॉन रोहिणी में थोड़ा मन का इलाज करने के लिए, तो मंदिर वैसे है हमारे मन का इलाज करने के लिए, शरीर का इलाज करने के लिए। ऑफ कोर्स देयर आर वंडरफुल मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन ये मन का क्या कर रहे हैं। यूएसए के अंदर 2 मोस्ट मनी मेकिंग प्रोफेशनल्स आर साइकियाट्रिस्ट एंड लॉयर्स। Lawyers make a lot of money because outside there are so many conflicts, and psychiatrists make a lot of money because inside so many conflicts। इतने conflicts, even USA के अंदर हर चौथा व्यक्ति एक psychiatrist के पास जाता है। Even a psychiatrist goes to a psychiatrist। ये लोग ऐसी हरकतें करके आते हैं जिंदगी में, भाई हम भी पागल हो जाते हैं, सर हमारा इलाज करो। और ये भी किसी बात है भाई, हमारे कस्टमर इवन साइकियाट्रिस्ट भी, वाह क्या बात है। और ऐसे कल्चर को आज इंडिया फॉलो करता है। हम होंगे कामयाब, एक दिन हमारे यहाँ भी साइकियाट्रिस्ट और लॉयर पैसा कमाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। वाह कितनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है इंडिया, तालियां हो जाओ हमारे लिए। नहीं ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है मेरे भाई और बहनों, इसे ताली बिल्कुल नहीं बजानी। ये तो हमारी बेइज्जती है कि हम ऐसे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जो कितना खोखला कल्चर है। अमेरिकन कल्चर इज वेरी खोखला कल्चर। मैं तो रहा हूं वहां पर, बता रहा हूं इतनी खोखली जिंदगी है इनकी, सिर्फ ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड खाना और कुछ नहीं। लोगों ने बोला अरे अमेरिका क्या है अमेरिका, भाई चलो चलते हैं। फिर मैं गया था, आई हैड सम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट देयर, न्यूयॉर्क, नाइट लाइफ ऑफ न्यूयॉर्क। नाइट लाइफ भी देखी हमने, ठीक है ओके, फ्लैशी बोर्ड्स एंड ऑल दैट ओके, बस यही है। अरे सर न्यूयॉर्क तो बच्चा है, लास वेगास, द सिन सिटी, चलो सिन सिटी चलते हैं, वही ढक्कनबाजी और कुछ नहीं। इतना खोखला जीवन। तो मैं भी हैरान होता हूँ कि मतलब इंडियंस क्यों जाना चाहते हैं, पर ऐसा है। तो जहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत है उसी जगह पर मन फंसा रहता है। दैट्स द नेचर ऑफ माइंड। मेरे पास एक फैमिली आई थी, उनकी बहू रानी बड़ी दुखी रहती थी, तो उनकी फैमिली वाले बोले प्रभु जी थोड़ा काउंसलिंग करिए कि दुखी रहती है हमेशा। तो मैंने कहा क्यों दुखी रहते हो? मैंने कहा हो सकता है आपके पति, मैंने कहा आजकल ये पति लोग ऐसे हैं, 16 सोमवार के व्रत रखो तो भी टेढ़े मेढ़े मिलते हैं, क्या अब शिव जी गलती है नहीं, शिव जी कहते भाई कलयुग है, सप्लाई खराब आ रही है, हम इसमें क्या देंगे। तो ये माता जी बोले नहीं प्रभु जी ऐसा मत बोलिए, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बड़े लविंग है, बड़े केयरिंग है। अच्छा
अच्छी बात है। तो फिर आपकी सासू माँ ससुर जी क्या, एक होते हैं सुर, एक होते हैं असुर, बाकी ससुर। नहीं प्रभु जी ऐसा मत बोलिए, मेरे सास ससुर तो मेरे माता पिता के समान मेरे को प्यार करते हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर आप दुखी रहते हो कि बच्चों को लेकर। मैंने कहा बच्चे ये जेनजी बदतमीजों की जनरेशन है, एरोगेंट, ईगोइस्टिक, फीडबैक ले नहीं सकती, क्रैंकी, लेजी, आलसी, मेहनत करनी नहीं, क्या करें बच्चों। अरे नहीं ऐसा मत बोलिए, मेरे बच्चे बड़ा प्यार करते हैं मेरे से, बहुत अच्छे बच्चे। मैंने कहा अच्छा बच्चे भी आपके अच्छे। मैंने कहा पैसा, फाइनेंशियल क्राइसिस, लक्ष्मी तो आनी है जानी है, लक्ष्मी एक ही जगह से रहती है, नारायण के चरणों में, बाकी तो लक्ष्मी चंचल ही है। आज जो राजा है वो रंक है, कल जो रंक है वो राजा है। नहीं नहीं नहीं, बहुत पैसा हमारे पास, करोड़पति लोग हैं, हमारे फार्म्स हैं, वहां से ऑर्गेनिक सब्जियां आती हैं, देसी गाय का दूध आता है, वेरी गुड। अच्छा मैंने कहा फिर दुख, ये हेल्थ का रखा। मैंने कहा कल्लू के शरीर, ये लोअर बैक पेन, ये घुटने की ग्रीस, कुछ ना कुछ तो लेफ्ट राइट रहते रहता है। नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम तगड़ी हूं मैं, किसी का दवा तो जान निकाल दो उसकी। मैंने कहा अच्छा हेल्थ भी आपकी अच्छी है, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? तो उसने कहा कि ना मेरे को दिक्कत ये है बाबू जी कि ना मैं चाहती हूँ हम यूएस में सेटल हो जाएं, और मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं हम इंडिया में ही रहेंगे। मैं सोच सोच के दुखी रहती हूँ। जय हो माता जी, कहाँ है भाई अगरबत्ती लेकर के इनकी आरती उतारे। वाह, सो दैट्स द नेचर ऑफ माइंड, हाउ माइंड गेट्स स्टक। दूसरा है आई, MIND। सो आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनिंग प्लेजर। दूसरा मन का जो फंक्शन है जो मन है फंसाता है, विच इज एन इमेजिनिंग प्लेजर। उस प्लेजर के साथ ऑब्लिगेशंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, वो नहीं सोचता। मेरे को मज्जा करना है, मेरे को मज्जा करना है, मज्जा 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 मज्जा। तो हमेशा मजे के बारे में सोचने वाला वो है मन, कल्पनाएं। जैसे होता है ना कॉलेज के दिनों में, दिल मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तो उसमें ऐसी इमेजिनेशन, अरे 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 हाँ ये मेरा पहला पहला प्यार है। फिर सेकेंड ईयर, हाँ ये मेरा दूसरा दूसरा प्यार है। थर्ड ईयर, हाँ ये मेरा तीसरा तीसरा प्यार है। चौथा साल, हाँ ये मेरा चौथा चौथा, पांचवा पांचवा, छठा छठा, फिर स्वाद से मैरिज हो जाती है। वाह क्या बात है, सब पास। So this is what is happening. So होता क्या है ऐसा, so imagining pleasure। और एक बार आप पढ़ाई लिखाई के दिनों में आप एक बार इसमें आ जाओ, imagining pleasure, पढ़ाई का तो बेड़ा गर्क, कुछ नहीं बना। जैसे आज तक जो बच्चे जो निकल रहे हैं कॉलेज, चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, इनमें ना वो कंटेंट नहीं आ पाता। कुछ में आता है पर सब नहीं आ पाता, बिकॉज पढ़ाई करते ही नहीं है। जैसे नवज विद्या जो है ये प्राप्त होती है 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके, तब जाकर ये नवज विद्या, तब ना नव्स पकड़ में आती है। पर आज नव्स विद्या कोई नहीं आता, इसकी तो नव्स, ये तो है ही, ये तो मरा है, तो डेड है। ताकि थोड़ा थम, देखो ये कफ पा, ये कफ पा बात का, ये पित्त का, हाँ देखो आ रहा है कुछ नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो 15 साल की उम्र में ही ब्रह्मचर्य की चीजें उड़ा चुके हैं अकेले में। ओए होए होए होए, तो इसलिए कुछ हाथ में आता ही नहीं, किताब खुलनी नहीं, क्योंकि बगल में जब ये अप्सरा पड़ी होती है ना, ये पुकार रही होती है, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में YouTube भी है, मुझ में Netflix भी है यारो, तो आजा आजा। कौन पढ़े माइटोसिस मियोसिस, कितना बोरिंग है ये माइटोसिस मियोसिस, ये कितनी रंग बिरंगी दुनिया है, इसी में चलते हैं। इमेजिनिंग प्लेजर। फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग आती, क्या होगा 5 साल की ग्रेजुएशन 6 साल में हुई तो, 6 साल में हुई तो कॉलेज वाले निकाल देंगे, पिताजी गोली मारेंगे, बाद में गोली मारेंगे या गुलेल मारेंगे, क्या मारेंगे। अब ये ओवर थिंकिंग शुरू होती है। सो आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनिंग प्लेजर। N stands for negates responsibility। मन को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, कहते मजा हो, पूरे दिन एक वाईफाई दे दो, एक फोन दे दो, अब फिर देखो आप 3-3 घंटा यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स ऐसे निकालते हैं। सो नेगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड D stands for denies reality। मन को रियलिटी पसंद नहीं है, इसलिए कोई एवेंजर्स देखने के लिए बड़े लोग भी जाते हैं, जबकि एवेंजर्स मूवीज जो है जैसे स्पाइडरमैन, एंटमैन, ये सब देखने के लिए बच्चे जाने चाहिए।
पर आप मूवी हॉल के बाद देखो बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, एवेंजर्स, थानोस, क्या बात है। आपकी उम्र कितनी है? 30, 25, वेरी गुड। क्योंकि इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि पीटर पार्कर है, वो करता है, उसके वहां से वेब निकलता है। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई आपको स्पाइडर काट जाए, आपका डीएनए चेंज हो जाए, फिर आप कुछ और ही बन गया, ऐसा होता है? नहीं होता भाई। लेकिन जिस चीज का रियलिटी से कनेक्शन नहीं है, माइंड लाइक्स इट। लेकिन जो रियलिटी है, माइंड कहता है वो रियलिटी तो बहुत बहुत बिटर है यार, लेट्स अवॉइड इट। तो इसीलिए दिस इज अ फंक्शन ऑफ माइंड, MIND। इसका शंख थोड़ा बंद कर दे, अच्छा शंख बजाना है हालांकि, लेकिन मंदिर में शंख अच्छा लगता है, ठीक है। सो M stands for, अरे प्रभु प्रभु, M क्या था? हैं जी? Magnify the problem. I stands for imagines pleasure. Yes. N stands for क्या? Negates responsibility. Responsibility पसंद नहीं है मन को, मजा करना होता है, मजा कर यार जिंदगी में, और क्या? D for denies reality. So मन को जो सच्चाई पसंद नहीं है, वो एक ऐसी दुनिया में रहना चाहता है जिसका कि सच से कोई कनेक्शन नहीं है। So that's mind. तो इसीलिए मन की जो रिपीट टेलीकास्ट है उससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। So what is the result of in case you are a victim of overthinking? So first thing which happens is that you are not able to make right decisions in life. जैसे अर्जुन, he was doing overthinking. मैं क्या करूं, मेरे आगे परिजन खड़े हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे परिवार वाले हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, मैं मारूं ना मारूं, नहीं छोड़ देता हूं, मैं तो भीख मांग के जी लूंगा, क्या करूंगा लड़ करके, नहीं चाहिए इंद्रप्रस्थ दे दो उनको, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर दोनों ही दे दो उनको। ओवरथिंकिंग, मैं लड़ूं ना लड़ूं, लड़ूं ना लड़ूं, ना लड़ूं। So ऐसे में क्या करना चाहिए? When in case you are having such a confusion, whenever confusions encroach, go to a coach. What's that? Whenever confusions encroach, go to a coach. आजकल एक बड़ी अच्छी चीज आज की निकली हुई है, वो है listen to your inner voice. कौन विश्वास करता है इस बात पे कि हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए? Listen to that inner calling and then go for it. कौन मानते हैं इस बात को? मत करो ऐसा, बहुत खतरनाक होती है इनर वॉइस। कुछ नहीं पता ये वॉइस कहां से आ रही है, हमें लगता है शायद ये प्रभु की आवाज ही होगी। जब किसी ने दिल तोड़ा है तो प्रभु बोल रहे हैं आज तो 2 पैक लगा ले, आज तो परमात्मा ने कहा है। कहां है ओल्ड मॉन्क? अंदर की आवाज ईगो से आ रही है, मन से आ रही है, किडनी से, लीवर से, पैंक्रियास से, कहां से आ रही कुछ नहीं पता, उसका सोर्स क्या है। So never ever listen to inner voice. कितने लोग सुसाइड करते हैं? क्यों? मेरे अंदर से आवाज आई, अब जी के क्या करेंगे, मर जाओ। कहाँ है? काटू नसें, अरे नस कटने के ब्लेड ही खराब है। अरे ये कब करते हैं हम? When we listen to inner voice. We should not listen to inner voice. इनर कॉलिंग का कुछ नहीं पता। When you become spiritually very pure, तो फिर भगवान के साथ आपकी बातचीत हो जाती है, and then God can guide you from within. That's understood. पर अभी हमारा वो हाल है नहीं है। So इसीलिए there is always a relationship of teacher and a student, a guru and a disciple. सोचो अगर कोई MBBS करे इनर कॉलिंग को लेकर के, मेरी इनर कॉलिंग कह रही है कि इसका हार्ट राइट साइड में होना चाहिए, और खोल डाला आपने उसका, अरे रिब केज हो गया जी वहां, सर इसका तो दिल ही नहीं, he was a heartless guy। ऐसा क्या ना, हमेशा टीचर चाहिए लाइफ के अंदर। So never listen to inner calling. So अर्जुन ने इनर कॉलिंग को नहीं सुना। So confusions encroach, go to a coach. That's very important. नहीं तो वो confusions घूमती रहेंगी, overthinking होती रहेगी। Second is that when you think too much, तो thinking किसके बारे में चलती है? या तो past को लेके या future को लेके। past को लेके grudges, कि मेरे साथ जो हुआ था अन्याय था, गलत था, it was wrong, injustice, past। future को लेके क्या होगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, MBBS करे क्या होता है यार, फिर MD MS करना पड़ेगा, MD करूंगा MS करूंगा, फिर उसका डॉक्टर भी करनी पड़ेगी। एलोपैथी समझ में तो आती है, आयुर्वेद में घुसो, होम्योपैथी अच्छा है, मीठी मीठी गोलियां खिलाओ, करो जी, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। तो फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योरिटी क्या होगा, अब तो AI आ गया,
रोबोट ही करे थे अब तो सर्जरी, कहता हर्निया वगैरह तो अब रोबोट ही है, चीरा फाड़ा, अंदर नायलॉन की झिल्ली डाली, स्टेपल मारा, टक 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 और सिल गया उसको। अब तो डॉक्टर रोबोट ही कर देते हैं। पता नहीं हमारा क्या ही होगा यार, फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योरिटी। सो मन के दो पंख हैं, एक है पास्ट टेंस और एक है फ्यूचर टेंस। इन दो पंखों पे ही मन उड़ता है। तो अगर मैं चाहता हूं मेरा मन ना उड़े, क्या करना पड़ेगा मेरे को? इसके पंखों को काटना पड़ेगा। अगर पास्ट टेंस के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर टेंस के बारे में सोचेंगे, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा फिर? टेंस। पास्ट वो भी टेंस था, फ्यूचर क्या है? टेंस ही दिख रहा है, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा फिर? क्या हो जाएगा? टेंस। यस। तो इसलिए पास्ट में हो गया भाई, माफ हो गया भाई, ठीक है, जो गलतियां हो गई, इट्स ओके, टेक अ चिल पिल, हरे कृष्णा। फ्यूचर का फ्यूचर आएगा ना, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, इट्स ओके। तो इसीलिए फ्यूचर के बारे में बहुत ही सोचना चाहिए, प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इसलिए दोनों पंखों को काटना चाहिए, उससे ओवर थिंकिंग कम होती। नहीं तो आप इन दो पंखों को उड़ते रहे तो हो गया काम, ठीक है। थर्ड जो होता है दैट यू लूज योर फोकस। दैट मींस there is paralysis by analysis, too much of analysis, too much of micromanagement। तो इतना माइक्रो डाइसेक्शन करते रहेंगे ना लाइफ का, मर जाएंगे हम लोग, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए we should not get to so much of analysis paralysis, we should not do that। साथ ही we become over self critical, overthinking का एक और symptom क्या है? we become over self critical। और तब होता है when you compare yourself with others, और उसके साथ कंपेयर करना। ये तो वो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया डाइसेक्शन कर लेता है वो, उसको सारे ऑर्गन पता है, उसको डेफिनेशन ऐसे याद रहती है, ऐसे। जैसे कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, वो मैथ्स ना लिखते नहीं है, बस मन में करते हैं, ऐसे करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिख जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लगा के ये इसका आंसर तो √2 है। अच्छा भाई ये कैसे निकाला तूने? कैसे निकाला? अरे सिंपल है, सिंपल नहीं है यार, मेरे तो नहीं है, तेरे लिए नहीं होगा, मेरे तो है। बट व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्व्स, कंपेयर करेंगे तो भी ओवरथिंकिंग होती है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ, ईच वन ऑफ अस आर यूनिक। व्हेनेवर वी कंपेयर, वी आर इंसल्टिंग द यूनिकनेस व्हिच गॉड हैज ब्लेस्ड अपॉन अस। वी ऑल आर यूनिक। कुछ लोग बड़े फास्ट लर्नर्स हैं, कुछ लोग स्लो लर्नर्स हैं, कुछ लोग बड़े टॉकेटिव हैं, कुछ लोग बड़े क्वाइट हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट हैं। सो हर व्यक्ति की अपनी अपनी खासियत है। तो जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हो, then you are insulting the uniqueness which you have. So never compare yourself, which also results in never compete with others. हमें औरों से कंपटीशन नहीं करना है, हमें कंपटीशन खुद से करना है। We should compete with our own selves. तो क्या हम खुद के साथ ईर्ष्या द्वेष कर सकते हैं? Can we be jealous of our own selves? No. हम अपने से ईर्ष्या द्वेष थोड़ा ना करता है। तो इसीलिए हमें औरों से कंपटीशन नहीं करना। वो करेंगे तो ईर्ष्या द्वेष होता है, ये उसके नंबर है, ऐसे कैसे आ गए, वो तो पढ़ता भी नहीं, वो तो पढ़ती भी नहीं, बाहर बैडमिंटन खेल रहे होते हो, क्या यार, एनीवेज एवरी डॉग हैज अ डे। पर क्या सॉल्यूशन है? नो। सो डोंट कंपेयर, डोंट compete with others, compete with yourself. Am I a better version of myself than yesterday? Academically, scholastically, am I or not? ये खुद से पूछना चाहिए। When we compete with our own selves, that is best. That's the best way of self improvement. Okay, एक और जो चीज इसका which is symptom of overthinking is that we are unable to relax. There are sleeping disorders that कई लोगों क्यों होते हैं? Why? Because they are not relaxed. एक जो चीज हमें सीखनी चाहिए which is to release control. Overthinking का एक बहुत बड़ा symptom है और कहने का reason भी है is that we do not release control. Do your best and then God takes care of rest. ये God takes care of rest जो है ना, वो वाला पार्ट करना नहीं है। ऐसे कैसे God take care of rest, हमें और करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। Do your best, उसको छोड़ देना होता है। नहीं, हमारे यहाँ पर एक आकाश इंस्टीट्यूट है, उसमें लिखा हुआ है We treat, God cures। हम तो लोगों को दवाई दे सकते हैं, अच्छा इलाज दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, उसके बाद उसकी हीलिंग है, वो अल्टीमेटली हमारे हाथ में नहीं होती। Like healing is a function which is installed by God in our body. Amazing system actually. अगर कोई बॉडी का हीलिंग सिस्टम देख ले, अद्भुत। मतलब सोचिए थाई की बोन जो कि इतनी मजबूत बोन है,
वो भी जुड़ जाती है आपस में एक दिन। वाह, हीलिंग। तो इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोल रिलीज करना चाहिए। जितना पकड़ पकड़ के रखेंगे उतना ओवर थिंकिंग होती है। स्ट्रेस छोड़ देना चाहिए। आई डिड माई बेस्ट। इवन रिश्तों को लेकर के लाइफ में, लाइफ आप मान लो कोई लाइफ पार्टनर बनता है, यू कैन लव दैट पर्सन, टेक केयर ऑफ द पर्सन, मान लो फिर भी उसको कोई और पसंद है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट। तो इसीलिए डू योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अब तब रात को आप सुकून से सो पाओगे, क्योंकि रात को सोते हो कहोगे कृष्णा, ओ गॉड, अब बाकी आप देखो, मैंने अपना बेस्ट कर दिया। सो जाओ, एक अच्छी नींद लो, बहुत बढ़िया। अब किस का कोई अनुभव है, when you have good sleep and when you wake up you are repaired? किस कोई अनुभव है ऐसा होता है ना? अब बहुत तनाव है ना, you take a good rest, आप उठते हो कहते यार काफी सर्किट टूट गए, मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया काफी सारा, अभी अच्छा हो गया। You know, when we sleep, especially when you have dreamless sleep, at that time we are having subtle connection with God and God heals us. कई चीजें रिपेयर होती है उसके अंदर। God as super soul is there in our heart. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, I am there in everyone's heart as super soul, as Paramatma. So when we sleep dreamlessly, जब dreams होते हैं then you are in touch with your mind, but dreamless मतलब mind के भी आप टच में नहीं हो, बॉडी तो भूले हुए हो आप, you are not conscious of the body at all. Secondly, even आप माइंड के भी संग में नहीं हो, not with your intelligence, not with your ego, उसके भी संग में नहीं हो, then आप किसके संग में हो? We are actually in touch with God, not consciously, unconsciously, but God is healing us. इसलिए अच्छी नींद देना जरूरी है। पर जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ये लोग रात को सो नहीं पाते हैं। उनके अगल बगल में सब सो रहे होते हैं, बगल में भी कोई सो रहा बंदा, इसका तो बढ़िया चल रहा है, अच्छा इसका भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेरा ही नहीं चल रहा है यार, मेरे को नींद कब आएगी, मुझे नींद ना आए, क्यों ना आए? प्यार हो गया? नहीं सर, ओवर थिंकिंग से प्यार हो गया मेरे को, इसलिए। So these are some of the symptoms of overthinking. तो इसका बड़ा इलाज क्या है? इसका इलाज है, as soon as you come to know that this symptom is there, be conscious. ज्यादातर लोग कलयुग के अंदर दिक्कत क्या है, they are not conscious. They are just seeing the picture of TV. So the picture on the TV of mind. मन की कोई ना मूवी देखते रहता कोई ना कोई। तो आप जब मूवी देख रहे होते हो ना, आप रियलिटी से कटे होते हो, आपका अगल बगल में क्या चल रहा है आपको नहीं पता चलता, बट यू आर वॉचिंग द टेलीविजन ऑफ योर माइंड एंड यू आर नॉट कॉन्शियस, यू आर कॉन्शियस बट ओनली एक्सटर्नली। तो सबसे बड़ा इलाज, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ओवरथिंकिंग इज निप इट इन द बड। दैट मींस बी कॉन्शियस। कहते एक मिनट में ओवरथिंक करना हो, यू नो आई एम ओवरथिंकिंग, यस आई एम ओवरथिंकिंग, बिकमिंग कॉन्शियस बहुत जरूरी है। अच्छा मैं ओवरथिंकिंग क्यों करता हूँ? वैसे एक्चुअली मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बेकार है, इसलिए कोई मेरे से मजाक करता है ना, वो कुछ चुप जाता है। किसको चुपता है वो? मेरी ईगो को। Here I am becoming conscious of my overthinking, कि मैं एक्चुअली कहाँ फंसता हूँ ओवरथिंकिंग में। एक्चुअली मेरे को ना रिस्पेक्ट बहुत चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना, मेरा सॉफ्टवेयर सब हार्डवेयर सब उड़ जाता है। कॉन्शियस। जैसे लड़कियां होती है ना, लड़कियों को ओवरथिंकिंग ज्यादा होती है। जितने लोग ओवरथिंक करते हैं उनमें 43% आर मेल, 57 आर गर्ल्स। अब लड़कियां ओवरथिंकिंग ज्यादा क्यों करती हैं? क्योंकि एक इनकी शक्ति है जो इनकी कमजोरी भी है, वो है इनकी गुड मेमोरी। लड़कियों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हस्बैंड वाइफ में जब भी कला कलेश होंगे, पत्नी ही जीतती है, बिकॉज शी फाइट्स विद डेटा। पति के पास कोई डेटा नहीं होता, वो तो घर बुला के भूल भुला कर देते हैं। तुमको याद है बस ईयर 2015 5th of January मैकडॉनल्ड्स में जब हमने आलू टिक्की लिया था, मैक आलू टिक्की, तब पैसे मैंने दिए थे। 2015 में डॉलर्स, ये क्या हुआ? प्लीज डोंट डू दिस ड्रामा, प्लीज डोंट डू दिस।
उसके बाद विम्पीज गए थे, पैसे मैंने दिए। फिर हमने चिकन की साड़ी खरीदी, पिंक रंग की साड़ी थी, शिफॉन की साड़ी ली थी हमने, पैसे मैंने दिए थे। तुम्हारा पति का यार ये कौवा सो लेडीज की स्ट्रेंथ है उनकी अच्छी मेमोरी। इसलिए मेडिकल में लड़कियां ज्यादा आती हैं, मेमोरी अच्छी होती है। हाँ, दवाइयों के नाम ये और नाम वो और नाम हो जाता है, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है, अच्छी मेमोरी। इमोशनल भी होती है, मेमोरी भी अच्छी होती है। पर यही उनकी दुश्मन बनती है जब उस मेमोरी के अंदर वायरस घुस जाता है। किसी को दुख कष्ट दे दिया उनको, फिर वो भी अंदर घूमता रहता है, वो भी भूल नहीं पाती। कहते हैं माता जी भूल जाओ, नहीं भूल सकती मैं उसको, गंदा कहीं गाना हो तो मतलब भूल जा, नहीं भूल सकती प्लीज, इनजस्टिस। अरे तो इसीलिए कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में कॉन्शियस होना और फिर एनालाइज करना कि मैं एक्चुअली कहां पर अटकता हूं, क्या चीजें हैं जो मेरे में ओवर थिंकिंग को इंस्पायर करती हैं, उसको उसके लिए स्टिमुलस का काम करती हैं, ये एनालिसिस करना चाहिए। ये देखिए मैं कहां फंसता हूं। सो बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ ओवर थिंकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवर थिंकिंग। ठीक है। सेकंड जो कि इसी से कनेक्टेड है, व्हिच इज हाउ टू डील विद ओवर थिंकिंग, इज दैट फॉरगिवनेस। ज्यादातर लोग क्यों फंसे हुए हैं ओवर थिंकिंग के अंदर? बिकॉज वो लोग माफ नहीं कर पाते, ग्रज रखते हैं। और ग्रज जो है ना आपको आपकी सारी शांति खत्म कर देता है, ग्रज। और तुरंत आपको रिलीफ मिलता है as soon as you forgive. Forgiveness is a gift which we do not give to others. Forgiveness is a gift which we give to our own selves. हम खुद को उपहार देते हैं किसी को माफ करके। हमको लगता है कि नहीं, that person deserves worst of the worst. ये बिल्कुल वैसे हमारे को अंगारे पे हाथ रखे, बस जैसे ही मौका मिला ना फेंक दूंगा उसके ऊपर में। जलते हुए अंगारे, अभी कौन जल रहा है? अब भी कौन जल रहा है? मैं। तो ये ग्रज बेसिकली इज नथिंग बट होल्डिंग अंगारे, ऐसा बर्निंग हॉट चारकोल अपने हाथ में रखो, सोच के जैसे ही मौका मिला ना फेंक दूंगा उसके ऊपर, फेंक दूंगा उसके ऊपर, फेंक दूंगा उसके ऊपर, फेंक दूंगा उसके ऊपर। खुद को जलाना बंद करें। अपने घर के ऊपर के ना अगर आप किसी को जगह देते हो तो उससे रेंट लेते हैं, राइट? बट व्हेन वी हैव ग्रज तो हम किसी को यहां रखते हैं, पैसा भी नहीं लेते उससे। वाह, कीपिंग समबडी इन द हेड रेंट फ्री। वाह जी वाह, क्या बात है यार, अद्भुत। सो फॉरगिवनेस, देयर इज सेइंग फॉरगिवनेस इज सच अ मैजिकल थिंग। इट कूल्स द स्टिंग एंड इट वार्म्स द हार्ट। इट कूल्स द स्टिंग, जहां डंक लगा होता है ना, गर्म होता है, यार अभी भी डंक लगा है, और जब ग्रज होता है रिश्ते कोल्ड हो जाते हैं। सो हार्ट इज कोल्ड एंड द स्टिंग इज हॉट, बट फॉरगिवनेस रिवर्सेस द टेम्परेचर। दैट मींस हार्ट बिकम्स वार्म एंड स्टिंग बिकम्स कूल। ऐसा तो क्षमा करना सीखना चाहिए, पर हम ना क्षमा मांग पाते हैं ना क्षमा कर पाते हैं। नीदर वी सीक फॉरगिवनेस नॉर डू वी फॉरगिव। व्हाई? एक कॉमन चीज है जो कि रोकती है, यस, किसने बोला? आपको मिलता है विंबलडन। वेरी गुड, नाइस। ईगो, ईगो रोकती है कि मैं माफी क्यों मांगूं, हम क्यों झुके, हम क्यों झुके, हम क्यों झुके। हाँ नहीं तो ये क्या है? विनम्रता है, ईगो है। इज दिस ह्यूमिलिटी और इज दिस ईगो? ईगो। हम क्यों झुके, हम माफी नहीं मांगेंगे, हम क्यों झुके। और जब कोई माफी मांग रहा हो, क्यों माफ करे, क्यों माफ करे है? पहले गंदे काम करे, आई अपोलोजाइज तुम्हारी। ये भी क्या है? ह्यूमिलिटी और ईगो। यस। सो फॉरगिवनेस में नीदर इन टर्म्स ऑफ सीकिंग फॉरगिवनेस नॉर फॉरगिविंग समवन एक ही कॉमन दिक्कत है, वो है ईगो। दिस वेरी फेमस सेइंग, देयर इज सेइंग दैट relationships do not die a natural death, they are always murdered by ego. रिश्ते कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, उनकी हत्या की जाती है। किसके द्वारा? ईगो के द्वारा। यस। जैसे दूध और पानी की दोस्ती, दूध और पानी दोस्त है, तो दूध ने पानी को बोला, ए पानी तू मेरे मिल गया यार, तूने अपना स्वरूप खो करके मेरे स्वरूप में अपने में आपको मिला लिया, तूने क्या करता है यार तू दोस्ती में भी ना। पानी ने बोला, अरे हमारा स्वरूप क्या है यार, दोस्ती दोस्ती होती है,
हमारा ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है, छोड़ दिया हमने, तेरे मिल गया, वाह बड़ी दोस्ती है। तो दूध ने बोला ठीक है, अगर तेरी दोस्ती है तो हमारी भी दोस्ती है, मैं तेरे को मेरे दाम बिकवाऊंगा, तू सस्ता बिकता है ना पानी, मैं दूध हूं, मैं तेरे को अपने दाम बिकवाऊंगा। पानी ने कहा ठीक है, अगर कभी हमें उबाला जाएगा ना, पहले मैं उड़ूंगा, पहले मैं वाष्पित होऊंगा, फर्स्ट आई विल इवेपोरेट देन यू। तो दूध ने बोला जब तू ऐसे इवेपोरेट हो रहा होगा ना, तो मैं आग में कूद जाऊंगा ओपन करके कि आग तो बुझ जा, मेरे को मेरे दोस्त से अलग मत कर, पानी मेरा दोस्त है। तो ऐसी है दोस्ती पानी की और दूध की। तो पानी और दूध अलग अलग होते कभी? नींबू निचोड़ दो अलग हो जाते हैं। नींबू क्या है? ईगो, अहंकार। ये अहंकार है जो हमारे रिश्तों को खत्म करता है, वो चाहे पति पत्नी का हो, दोस्तों का हो, इवन भक्त और भगवान का हो। भक्त और भगवान का रिश्ता भी खराब होता है, क्यों? ईगो कहता है दिया क्या उसने, क्या दिया उसने, गणपति बप्पा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया, माल नहीं जा रिया, पैसा नहीं आ रिया, थारो भक्त रो रिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो इवन भक्त और भगवान में भी अगर दिक्कत जाएगी, किस दिक्कत ईगो की होती है। गुरु और शिष्य, ईगो। मेरे दोस्त है अपने गुरु से नाराज, क्यों? गुरु जी शादी में नहीं आया उसके। मैंने कहा तेरी शादी इतनी भी आएगी, मतलब हो गई, गुरु जी नहीं आया तो गुरु जी से नाराज। ईगो, इससे बचना चाहिए। सो फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रिलीविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम ईगो। अच्छा, और क्या करना चाहिए? साथ ही वी शुड राइट डाउन जो चीज यहां चल रही है ना। इज वन वेरी गुड वे टू डील विद ओवरथिंकिंग इज टू राइट इट डाउन। अगर आप किसी को राइट करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, उससे ना एक डिस्टेंस बनाते हैं। अपने यहां से आपने उसको यहां उतारा, डिस्टेंस। When you make distance from your thoughts, then you can handle the thoughts. अगर thoughts आपके यही घूमते रहेंगे ना, and you identify with those thoughts, you can't manage the thoughts. आज कितने लोगों ने कभी हलवा बनाया है, हलवा बनाते हुए किसी को देखा है? नहीं, आप लोग हलवा नहीं खाते ना, कहते हैं क्या हलवा की बातें कर रहे हैं, हम तो दाल रोटी खाओ हरि के गुण गाओ, ऐसा। किसने हलवा बनाते देखा है कभी अपनी माता श्री को? वेरी गुड बनाते हैं, वेरी गुड, नाइस। तो हलवा कैसे बनाते हैं? कढ़ाई के अंदर खड़े हो गया, कढ़ाई के बाहर खड़े हो गया, है जी? भाई काफी डिफिकल्ट सवाल है ना, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। ये अगर आ गया तो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत गलत ही हुआ। आज बताइए जी, कैसे बनाते हैं हलवा? कढ़ाई के अंदर खड़े हो गए, कढ़ाई के बाहर खड़े हो गए? अगर कढ़ाई के अंदर खड़े होकर बनाया हलवा तो हम खुद ही हलवा बन जाएंगे। यस, वेरी ट्रू। उसी तरह से आपके थॉट्स को अगर आपको मैनेज करना है, सो थॉट्स में खड़े होकर के आप उनको मैनेज नहीं कर सकते। आपको थॉट से अलग खड़ा होना पड़ेगा, देन यू कैन मैनेज है। कि मेरे मन तो ओवरथिंकिंग कर रहा है आज, तेरे गुस्सा है, तो आज बड़ा लसफुल हो रखा है। नया बैच में वो आई ना जैस्मिन, उसको देख के आज मेरे मन, आज देखो रिस्पेक्ट ही, देखो इज्जत ही नहीं। सौम्या ने उसको कैसे देख लिया यार, वो तो मेरा है। That chocolate guy is mine. How can you look at that guy? Nonsense. Oh. तो इसलिए थॉट्स को जब तक हम देखेंगे नहीं, थॉट्स को मैनेज नहीं कर सकते। थॉट में खड़े होकर के थॉट को मैनेज नहीं कर सकते, थॉट से अलग होकर के उसको देख सकते हैं। सो कभी कभी थॉट्स को ऑब्जर्व करने से आपकी ओवरथिंकिंग में थमना हो जाता है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग देम। जैसे आप ट्रेन में जा रहे होते हैं ना, ट्रेन में आप खेत खलियान देख रहे हो, पर आप अटैच नहीं रहते। अरे मेरे खेत, अरे भुट्टे भुट्टे, ऐसा करते हैं हम लोग। नहीं, भुट्टे निकल के भुट्टे जी जय बेनजीर भुट्टे, राइट? है तो हम भुट्टे से अटैच हो जाते हैं। मेरे भुट्टे नहीं, वी आर ऑब्जर्विंग, क्या आ रहा है जा रहा है, भुट्टे गए, गेहूं आ गया। इस तरह से थॉट्स जो है उनको ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। सो यू डिटैच करेंगे, देन वी कैन वर्क ऑन देम, ऐसा। तो इसलिए आपको डिटैच करना चाहिए। अच्छा, और क्या करना चाहिए? साथ ही इन केस यू वांट टू चेंज योर एटीट्यूड, then one very also important, very good after observing your thoughts is healthy self talk. अच्छी self talk करनी चाहिए।
There was one lady, उसका बच्चा तो रोए जाए, बच्चा चुप ही ना हो. और लेडी खड़ी हुई और बोली बच्चे की ओर, Stephanie, everything will be fine, Stephanie. तो विद्या कहता आपके बच्चे का नाम स्टीफेनी है? नहीं, स्टीफेनी मेरा नाम है. मैं खुद को बोल रही हूँ, Stephanie, everything will be alright, Stephanie. Having healthy self-talk. अब self-talk होना किसके बीच में होती है? Self-talk होती है मन के बीच में और बुद्धि के बीच में. Between the mind and the intelligence. Overthinking कहाँ होती है? Mind या intelligence? Mind. तो यानी अगर mind को educate करने के लिए intelligence है, then overthinking can be taken care of. That is, intelligence यहाँ हो, mind यहाँ हो. So then, intelligence can take care of the mind. Overthinking. But provided intelligence यहाँ हो, mind यहाँ हो. लेकिन दुनिया में 99.99% लोगों के साथ उल्टा है. माइंड ऊपर है, इंटेलिजेंस नीचे है. माइंड कहता है ओवर थिंकिंग करनी है मेरे को, कुछ गंदा काम करना है मेरे को. इंटेलिजेंस कहती है अरे हम जुगाड़ देखते हैं अभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना. तो फिर इंटेलिजेंस फैसिलिटेट करती है ओवर थिंकिंग को इन द माइंड, क्योंकि ज्यादातर लोगों की इंटेलिजेंस यहां है. सो इंटेलिजेंस को यहां लेके आना होगा, यानी उसको खाना खिलाना पड़ेगा. तो बोला इंटेलिजेंस का खाना क्या है, क्या खिलाएं इसको? च्यवनप्राश, हॉर्लिक्स, बादाम रोगन, ब्राह्मी तेल की मसाज, बादाम, और क्या कर सकते हैं? सरसों के तेल की मालिश. क्या करें, क्या खिलाएं इसको? ये इंटेलिजेंस को यहां लेके आना है, अपग्रेड करना है. इतनी डाउनग्रेड हो गई है, क्या किया जाए? व्हाट इज द फूड ऑफ इंटेलिजेंस? स्पिरिचुअल नॉलेज. स्पिरिचुअल नॉलेज से इंटेलिजेंस अपग्रेड होती है. Then it can have good healthy self talk with the mind. Very important. लेकिन जिसकी इंटेलिजेंस ही वीक है, वो मन को सुनता रहेगा, मन बोलता रहेगा, इंटेलिजेंस सुनती रहेगी. And then overthinking even वो exponentially increase कर जाती है, because बुद्धि उसकी गुलाम हो गई. Intelligence has become a maid servant of the mind. So mind should be guided by intelligence. Like Arjun was confused. भगवान कृष्ण ने क्या दिया अर्जुन को? Spiritual knowledge. Done. Mind is settled. Arjun is settled. ऐसा जैसे आप ये देखें, जो रथ होता है ना, रथ में घोड़े भी हैं, सारथी भी है, योद्धा भी, साथ ही लगाम भी होती है. सो घोड़े क्या है? इंद्रियां, सेंसेस. लगाम क्या है? मन. सारथी कौन है? इंटेलिजेंस. सो इंटेलिजेंस थ्रू द माइंड कंट्रोल्स द सेंसेस. लेकिन सोचिए अगर आपका साथी बहुत बीमार हो, उसकी एकदम टांगड़ी पहलवान है, वो उसके लगाम खींची नहीं जाती, तो कोई घोड़ा यहाँ, कोई घोड़ा वहां, कोई यहाँ तो कोई वहां, किसकी जर्नी मिजरेबल हो जाएगी? द वॉरियर, राइट? जो वॉरियर है उसकी जर्नी मिजरेबल हो जाएगी. उस तरह से अगर इंटेलिजेंस वीक है तो माइंड को कंट्रोल कर नहीं पाती. फिर कोई इधर यहां भागी, कोई वहां भागी, कोई वहां भागी. अल्टीमेटली सोल बिकम्स अनहैप्पी. तो हम सब हैप्पी रहना चाहते हैं. यू वांट टू बिकम हैप्पी सिंह, उसके लिए कुछ करना पड़ता है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अपग्रेड आवर इंटेलिजेंस. अपग्रेड करेंगे देन वी कैन टेक केयर ऑफ ओवरथिंकिंग. तो इसलिए हैविंग हेल्दी सेल्फ टॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. साथ एक और चीज हमें करनी चाहिए जो कि हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, इससे कि हम ओवरथिंकिंग के लिए अपने आप को प्रोग्राम करते हैं. इज मल्टीटास्किंग. हम लोग मल्टीटास्किंग करिए करते हैं, खुद को ना हैबिचुअल बनाते हैं फॉर ओवरथिंकिंग. जैसे आजकल खाना खाते हुए ऐसे करते रहना, YouTube शॉर्ट्स. तो मिलता है हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं, खाना भी चल रहा है, यहाँ एंटरटेनमेंट भी हो रही है, बढ़िया. ना मैं किसी से प्रोग्राम कर रहा हूं अपने आप को, फोकस और बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. मैं कुछ काम फोकस से नहीं करना. आप यहाँ को देख रहे होते ना, भले यहाँ पर आपकी माँ ने गोभी के पराठे बना के रखे आपके साथ में दही बल्ले इमली की चटनी के साथ, आप उसका स्वाद ले ही नहीं पाते बिकॉज यू आर हियर. ओ भाई 3 पराठे आप चबा गए, खाली हो गए. मम्मी पराठा हो गया. अरे बेटा 3 खा चुका है. कोई बात नहीं, लाओ, मैं यहाँ बिजी हूँ इसलिए.
और खाएगा और खाएगा और खाता रहेगा। नहीं कब खाया पता नहीं, तो यहाँ है वो तो यहाँ है ऐसा। उसकी वजह से ओवर ईटिंग होती है। फिर धीरे धीरे करके जो प्री पेट है ये पोस्ट पेट बनता है। पहले पेट अंदर था, फिर ये पोस्ट पेट कनेक्शन बनता है, फिर उसी पे ही चाय की केतली। अब हमें टेबल की जरूरत ही नहीं है। लाइफ में प्रोग्रेसिव है हम, नाइस। पर ओवर ईटिंग भी इसीलिए बिकॉज मल्टीटास्किंग एंड आल्सो मल्टीटास्किंग दिस प्रोग्राम्स द इंटेलिजेंस टू बिकम डिस्ट्रैक्टेड। तब ओवरथिंक होते हैं। उसी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते लाइफ के अंदर। तो इसलिए मल्टीटास्किंग नो। जब आप खाएं तो सिर्फ खाएं, जब नहाएं तो सिर्फ नहाएं। अब कलयुग में ना वैसे देखा जाए कितनी शर्म की बात है। वैसे कलयुग वालों को बताना पड़ता है कि भैया जब तुम खाते हो ना, हाँ उस वक्त जो है ना तुम सिर्फ खाया करो। तो वाह। और आज इस बात पे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं आजकल, माइंडफुलनेस सेमिनार। क्या बताएंगे आज? See, the mindfulness is that you know, remain where you are, what you're doing at that time. You should just do that. What I want to say is that when you're having pomegranate juice, at that time you should just be drinking and relishing pomegranate juice. तो वाह, इतना दिव्य ज्ञान कि जब आप अनार जूस पी लो आप आओ भी अगरबत्ती लेके आगे की आरती उतारे हैं। कलयुग वालों को इतना बुरा हाल हो चुका है हम लोगों का कि हमें ये तक बताना पड़ रहा है कि आप जब खाया करो ना तो इस बात का ध्यान रखो कि उस वक्त सिर्फ खाओ। माइंडफुलनेस पर एक सिंपल एक्टिविटी है जो कि पहले क्या करते थे, पहले सब गैजेट्स वगैरह नहीं था हमारी लाइफ में। उसके बाद हमने ये करना शुरू किया। और आप देखो टाइम मैनेजमेंट सेमिनार्स तब से शुरू हुई हैं जब से हमारी लाइफ में टाइम सेविंग गैजेट्स आए। व्हाट अ पैराडॉक्स, हैरानी की बात है ना। पहले लोगों के पास टाइम नहीं होना चाहिए था, पर पहले लोगों का टाइम हुआ करता था। लोग खेती बाड़ी भी करेंगे, परिवार के लिए भी टाइम है, शरीर के लिए भी टाइम है। शाम को सब इकट्ठा होंगे, सब हरि कथा सुनेंगे, कोई रामायण सुनेगा, कोई भगवद गीता सुनेगा, सब बीवी बच्चे सब इकट्ठे होते हैं, सब सुनते हैं। सबको आधा आधा केला प्रसाद दे रहे, जय हो, जय श्री राम, जय राधे श्याम। टाइम भी था। आज हमारे पास टाइम सेविंग गैजेट्स हैं, व्हाट्सएप, ईमेल, शीमेल, नीमेल सब है। और आप पूछो किसी से ये हमारा इस्कॉन रोहिणी बगल में यहाँ टाइम ही नहीं, क्या बताएं लाइफ। लेकिन आपके पास सब टाइम सेविंग गैजेट्स हैं जी। अब क्या बताएं जिंदगी की सच्चाइयां, बस अब समय ही नहीं होता है। अच्छा परिवार के लिए ये समय ही नहीं होता है। अच्छा स्वास्थ्य के लिए ये समय ही नहीं होता है। वी आर टू बिजी टू बी हैप्पी। हमारे पास खुश रहने का समय नहीं है हमारे पास। सो बिजी, हस्बैंड वाइफ देर अर्निंग अर्निंग अर्निंग, किसके लिए है पता ही नहीं। जैसे मान लो कोई ट्रेन में चढ़ जाए, उससे पूछो भैया तुम ट्रेन में क्यों चढ़े हैं? वो सब चढ़े, हम भी चढ़े। अच्छा तो तुम कहां उतरोगे? हैं? जहां सब उतरेंगे हम भी उतर जाएंगे। अच्छा तो ये आदमी समझदार है बेवकूफ है? काफी कठिन सवाल है ना। जब तो समझदार है, कौन मानता है ये समझदार आदमी? कौन मानते तो बहुत बेवकूफ आदमी है। अच्छा कुछ लोग इसे भी हाथ नहीं खड़ा करते, ये तो कुछ जीनियस ही लग रहा है। बंदा सब चीजों को परे जा चुका है। क्यों चढ़े? सब चढ़े, हम भी चढ़े, ना उतरेंगे, सब उतरेंगे, हम भी उतर जाएंगे। बेसिकली बेवकूफ पागल आदमी है, राइट? ऐसे को अगर हमसे पूछे तुम क्यों जी रहे हो? सब जी रहे हैं। अच्छा तो लाइफ में करना क्या है आपको? तो सब करेंगे, हम भी कर लेंगे। तो ये आदमी कौन है? समझदार है बेवकूफ है जी? बेवकूफ है। और हिसाब से आप देखोगे ना दुनिया में 99.99% लोग बेवकूफ हैं। लेकिन बेवकूफ लोग खुद को बेवकूफ नहीं समझते। कहते हम कैसे बेवकूफ? तुम बेवकूफ, तुम्हारा खानदान बेवकूफ, थोड़ी बेवकूफ। हम तो एमबीबीएस कर रहे हैं, एमडी कर लिए, पीएचडी कर लिए, हम थोड़ी बेवकूफ। लेकिन एक्चुअली लाइफ का अगर आप फॉर्मेट देखें, हम बेवकूफों जैसी जिंदगी जीते हैं आजकल, राइट? तो इस लाइफ में एक पर्पस लेकर के आना बहुत जरूरी है। जब पर्पस फिक्स होता है ना, देन यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस।
जैसे कई लोग ना देखो मेडिकल एग्जाम की जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते थे ना, पढ़ते थे, अब एक बार कॉलेज में घुसे ना, अब डिस्ट्रैक्टेड है, अब तो घुस लिया भाई, अब तो एमबीबीएस हो गया भाई, अब अगला एमबीबीएस है मियां बीवी बच्चों समेत, और क्या एमबीबीएस है, अब तो कोई टेंशन नहीं। जब एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस होगा नहीं होगा, क्या रहेगा, दिल्ली में एडमिशन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार मिल गया तो, लक्षद्वीप मिल गया तो जीवन में जब कोई लक्ष्य होता है then you avoid distractions. नहीं जब कोई लक्ष्य नहीं है, relax. That's it. So ultimate goal of life is to have love for God. उनका हमसे लव है, हमारा हमसे कोई लव नहीं है, इसलिए भी overthinking है। So one of the ways to deal with overthinking is to chant the names of God. भगवान का नाम ले। हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में ना शाम को इतने लोग आते हैं कीर्तन सुनने के लिए, क्यों? पूरे दिन का इतना मलिदा फरीदा इकट्ठा किया होता है, बस प्रभु राधा माधव जी के पास जाके कीर्तन करते हैं, कीर्तन करके थोड़ा नाच के थोड़ा पसीना निकाल कर घर पहुंचते हैं एकदम डिटॉक्स्ड। बॉडी डिटॉक्स जरूरी है कि नहीं? और मेंटल डिटॉक्स वो भी जरूरी है, हार्डवेयर जरूरी है, राइट? लेकिन सॉफ्टवेयर खराब होगा तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई सिक्स पैक वाले हैं सुसाइड कर लेते हैं। जैसे लेकिन आपका हार्डवेयर तो अच्छा है, सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, इसको भी ठीक करना बहुत जरूरी है। मन चंगा तो सब चंगा, इसका मनी चंगा नहीं है ना, बॉडी एकदम हम्की है, एकदम टीप टाप, सिक्स पैक, नो केक, बिस्किट्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एलेक्जेंडर चीक्स, फिर भी लाइफ में दिक्कत है। अरे भाई तुम्हारा हार्डवेयर ठीक है, सब बढ़िया एकदम, लेकिन सॉफ्टवेयर, ऑल्दो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है? सॉफ्टवेयर। स्मार्टफोन हो लेकिन उसका सिम कार्ड ही खराब हो, कॉल होगी? नहीं होगी। आपको ऐसा फोन नोकिया 3310 जिसको 11 बंदे से भी गिराओ फिर जोड़ो फिर चलता है वो, लेकिन उसका सिम कार्ड अच्छा है, कॉल होगी। तो इसलिए हार्डवेयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑल्दो इंपॉर्टेंट है, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अपने सॉफ्टवेयर का भी ध्यान रखेंगे, देन वी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। क्योंकि ओवर थिंकिंग इज अ सिम्टम ऑफ डिसीज माइंड। एक बीमार मन की पहचान है, लक्षण है ओवर थिंकिंग करना। अदरवाइज यू आर रिलैक्स्ड। जब कुछ आता है तो दिमाग चलता है, मन भी चलता है, अदरवाइज यू आर रिलैक्स्ड, यू कूल, यू आर वेरी कूल। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। एंड देन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई बेचारा ओवर थिंकिंग का शिकार है, निकले इससे। लाइफ में जो कुछ भी है, एज सून एज यू ब्रिंग अ लर्निंग एटीट्यूड इन लाइफ, यू कैन क्रॉस बियॉन्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एवरी इवेंट इन लाइफ। कोई भी अगर प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, आप ये देखे चलो, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था है भगवान की मेरे को कुछ सिखाने के लिए, इसमें कुछ सीखना है। क्या सीखना है? ये देखना चाहिए। So learning attitude helps you go beyond any situations in life. That will really help you. Like China में एक proverb है, when anything bad happens to you and you blame others, उसकी वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है, then you are far away from the truth. When you see yourself as the person who is the cause, कि ना ऐसे जो हुआ ना, कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ, मेरे से गलत हुआ, then you are halfway through. और इससे भी ऊपर लेवल है when you neither blame yourself nor blame the other person. You say, well, it's some play of God to teach me something. कुछ सीखने के लिए इसके अंदर. That means you have reached your destination. Finally, you have reached your destination. Yes. तो इस प्रकार से when you have this learning attitude towards the events of life, then there is no overthinking. You move on in life. सीखा आगे बढ़े, सीखा आगे बढ़े. Pleasant experience, सीखा आगे बढ़े. Unpleasant experiences, सीखा आगे बढ़े. That is intelligence. ठीक है, आज शॉप में नाम हरे कृष्णा। किसी को सवाल है? कोई सवाल नहीं? ओके, सब मतलब थिंकिंग हो गई। तो ओवर थिंकिंग क्या? हमने तो थिंकिंग से ही बना के लिया साहब। ये दो केस में होता है, एक हमें सब समझ में आ गया, दूसरा ये हमारे साथ क्या हुआ। हाँ जी, कोई सवाल? हाँ जी, अच्छा यहाँ सवाल।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये पूछ रहा था, आपने बोला कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। तो वो कैसे करनी है और वो कैसे हेल्प करेगी? ओके, क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए? देखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस व्हिच इज वेरी प्रैक्टिकल फॉर एनीवन एंड एवरीवन, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो या कोई गृहस्थ हो, लेकिन सभी के लिए प्रैक्टिकल है, व्हिच इज ABCD। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हमें नियमित रूप से भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। संग करने का मतलब ये है that we have some spiritual exchanges with them. You may have some questions, you will listen from them, right? And then you have some doubts, clarification. तो इस प्रकार से हमें saintly personalities का संग करना चाहिए। कभी ना लोग साधु का संग नहीं करते क्योंकि हमने टीवी में साधु को बदमाशी दिखाया। अंधेरे को चीरती आई सरसरी, एक और पागल बिल्ला किसी की बीवी को लेकर भाग गया, मिलते हैं ब्रेक की बात। बस ये तो साधु लोग, किसी को चाहिए चमड़ी, किसी को चाहिए दमड़ी, सब वही करत माल। तो लोग अक्सर ना साधु से फिर संग नहीं करते, पर अच्छे साधु भी होते हैं, लेकिन मीडिया उनको कवर नहीं करता, क्योंकि अच्छे साधु को कवर करो तो टीआरपी नहीं आएगी, पर बदमाश को कवर करो टीआरपी आती है। पर अच्छे साधु भी होते हैं, गुड सेंट्स आर आल्सो देयर। तो इससे पहला ये कि हमें भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे हरि कथा सुने, डिस्कशन करें, करना चाहिए। ये तो रोजमर्रा डिस्कशन कर ही गए हैं कि ना करियर कैसे बनना है, दहेज कैसे इकट्ठा करना है, दवाई क्या लेनी है, अमचूर डालना है नहीं डालना है, आंवले की चटनी में इमली डालनी है नहीं, ये सब तो चलते हैं यार। लेकिन लाइफ को लेके वी शुड हैव सम गुड डिस्कशंस विद सेंटली पर्सनालिटीज, दैट्स वन थिंग। नाउ ए के बाद क्या है फिर? बी स्टैंड्स फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता। पढ़ना चाहिए, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए। हिंदू लोग तो किताबें पढ़ते ही नहीं। हमने एक बार किया था ये गीता सार कॉन्टेस्ट, और उस गीता सार कॉन्टेस्ट को जीता था एक मुस्लिम लड़की ने, रैंक 1। तो हमने उसको स्टेज पे बुलाया, हमने कहा बेटा आओ, 2 शब्द बोलना चाहोगे? तो उसने कहा मैं मुसलमान हूँ और हम मुसलमान लोगों के पास हमारी पर्सनल कॉपी होती है कुरान की, पर मैं देखती हूँ हिंदू लोगों के पास उनकी पर्सनल कॉपी भगवद गीता की नहीं होती। उनका फोन होंगे, 2 होंगे फोन, लेकिन गीता वगैरह नहीं पढ़ते। तो मैं अपने हिंदू भाई बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, दे शुड आल्सो हैव देयर पर्सनल कॉपी ऑफ भगवद गीता। लोग पढ़ते ही नहीं है, अखबार पढ़ लेंगे, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेंगे, दे देना पर भगवद गीता नहीं पढ़ते ये लोग। सो बी स्टैंड्स फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता, भागवतम, ये पढ़ना चाहिए। भले रोज 15 मिनट निकालें, दैट्स इट। पर एक रिचुअल लेकर के आए, अगर इंटरेस्ट नहीं है ना अगर पढ़ने का, एक रिचुअल के तौर पे 10 मिनट पढ़ेंगे, समझ में आए नहीं आए, मजा आए नहीं आए, करें। तो एक रिचुअल के तौर पे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू करना चाहिए, उससे मुंह की वोकैबुलरी भी अच्छी होती है। ये जो मुझे गालियां आती है ना सफिक्स में बी और प्रीफिक्स में जो लगाते हैं, ये इसलिए बिकॉज हमारी वोकैबुलरी ही खराब है। एक टाइम था जब बीसी का मतलब होता था बिफोर क्राइस्ट, अभी बीसी का मतलब फुल फॉर्म कुछ और हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारी वोकैबुलरी ही खराब है। तो वोकैबुलरी अच्छी कैसे होगी? व्हेन वी रिसाइट स्क्रिप्चर्स, ये टेम्पलेट अच्छी होगी हमारी, राइट? सो बी फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता, भागवतम, ये करना चाहिए। C for chanting the holy names of God, भगवान का नाम लेना चाहिए। कलयुग केवल नाम बता रहा, कलयुग में हमसे और कोई होने का नहीं है। ध्यान लगता है हमसे? कोई ध्यान लगाया? अगर ध्यान लगा, आओ ध्यान लगाए, ध्यान लगाए। और आधा घंटा पावर नैप लेने के बाद मेडिटेशन इज सो रिफ्रेशिंग। आधा घंटा सो के किसको रिफ्रेश फील नहीं होता बाबा? तो कलयुग में हमसे ध्यान लगते नहीं, और जहां ध्यान लगाना चाहिए वहां तो लगता नहीं है, और जहां ध्यान नहीं लगाना चाहिए वहां फटाक से लग जाता है। ऐसा हमारे ध्यान का हाल है। तो कलयुग वाले ध्यान करेंगे? बदमाशों की धमा चौकड़ी है। तो ये सतयुग रहता, द्वापर वाले तो हंसते हैं हम, देखो ये सारे कार्टून इकट्ठे हुए हुए एक साथ कलयुग में। तो इसलिए भगवान ने कहा तुम सारे के सारे बदमाश चिलगोजो, तुम लो मेरा नाम लेना आप कहीं भी ले सकते हो। इवन आपने नहाए हो नहीं नहाए हो, सुबह दोपहर शाम, अंदर बाहर, चलते फिरते, लेटते उठते, जीते मरते, नाम ले सकते हैं। तो भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसा कि चाहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड लेना चाहिए। सी, तो ये क्या था? एसोसिएशन विद सेंटली पीपल। बी फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता, भागवतम, ये पढ़ना चाहिए रोज, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट पढ़ें। सी फॉर चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, भगवान का नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। यस, कॉल आउट गॉड्स नेम्स out of love, out of devotion. That's the best meditation. ये करना चाहिए. And then D,
is diet, diet of prasanam, यानी आप जो खाएं उसको भोग लगाएं, समोसा खाएं, कचौड़ी खाएं, इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, नूडल्स, फूडल्स, जो भी है, शाकाहारी ऑफ कोर्स, तुलसी का पत्थर रखे, ऑफर करें, तो अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, तो अन्न भी शुद्ध करना चाहिए अपना, तो ये बहुत जरूरी है। तो when you follow ABCD, this is practical spirituality, ये सब कर सकते हैं, गृहस्थ भी कर सकते हैं, ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं इसको, तो जितना आपको टाइम अलाउ करे, without compromising your studies and your other responsibilities, तो जो थोड़ा बहुत कर सके, that will really help. तो ये spirituality, ये practical spirituality, you don't have to go to Himalayas, वहां जाएंगे हमको निमोनिया हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, जंगल जाएंगे वहां पर भालू हमें खा जाएगा, इसलिए वहां जाने का नहीं। फिर आज तो जंगल में जाना नहीं, ये कॉन्क्रीट के जंगल में रह करके ही प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी पॉसिबल। ठीक है जी, हाँ जी। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। मेरा एक सवाल है, जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि कलकत्ता में ये आरजीकर अस्पताल में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, और ये सारे हमारे जो है कि चिकित्सा बिरादरी में हुई है, तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये देश में घटनाएं ऐसी हो रही है और ये पहली बार नहीं है, इसमें ऐसा क्या इंसान को, ऐसी क्या चीजें हैं जो इंसान में उनको उत्तेजित कर देती है और ये चीजें उनको करने के लिए जो है कि मजबूर करती है, और इससे जो है कि इंसान को कैसे रोका जाए, इस घटनाओं के लिए आपका क्या कहना है? ये एक बड़ा विषय है। यस, देखिए वैसे तो इंडिया के अंदर हर रोज 90 रेप्स होते हैं, ये तो एक हाईलाइट हो गया, राइट, लेकिन वैसे हर रोज 90 रेप्स होते हैं, एक्चुअली देखा जाए रोज 90 ऐसी न्यूज आनी चाहिए, पर एक हाईलाइट हुई, पर स्पेशली ये केस था बहुत ही डिमोनिक था, बिकॉज इवन रेप करने के बाद जिस तरह से डील किया गया बॉडी के साथ, गॉड, मतलब पेल्विक एरिया तोड़ देना किसी का, अरे क्या मतलब, आर यू अ बीस्ट, आर यू ह्यूमन बीइंग? तो इसलिए the one who has done this certainly they were psychos, तो लोग साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस होते हैं। लेकिन जनरली देखिए अगर रेप होता है उसका बहुत बड़ा कारण ये है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द अपोजिट जेंडर, जहां हम स्त्रियों को ना मनुष्य नहीं मानते, दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट, ये क्या बढ़िया दिखती है, क्या मटक चटक, अरे पर ये भाषा कौन लेकर जाना है? बॉलीवुड, और उसका भी वर्स्ट वर्जन है पॉर्न। पोर्नोग्राफी के अंदर एक्चुअली देखा जाए जब पॉर्न स्टार्स होते हैं ज्यादातर फीमेल्स होती हैं, व्हाई? बिकॉज इट्स अ ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल्स। और मेरे को हैरानी ये होती है कि जितने फेमिनिस्ट वाले हैं वो हल्ला करते हैं स्त्री का अपमान, ये फला ढिमका, लेकिन पोर्नोग्राफी को कुछ नहीं बोलते लोग, जबकि सबसे बड़ी इंसल्ट वुमन की इज इन पोर्नोग्राफी। वुमन इज सीन एज अ ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। सो एक ब्रेन को प्रोग्राम कैसे किया जाता है जनमानस में, that you become a wild beast and do not respect for these ladies, objects to be enjoyed is porn। 2014 में मोदी जी ने सारे porn वेबसाइट बंद कर दी, इंडिया में खुलेगी ही नहीं, खुलेगी नहीं। इंडियन से होला कर दिया, नहीं नहीं मोदी जी हमें गंदी चीज देखनी है, हाउ डेयर यू प्यूरिफाई अस, आपकी हिम्मत कैसे हमें शुद्ध जीवन देने की, हमें गंदा ही रहने दो। तो कुछ वेबसाइट्स खोल दी, उसी में खुश हो गए देने बोल के ये हम गंदा चीज देखेंगे, थैंक यू मोदी जी, सो नाइस। खोलना पड़ा मजबूरी में उनको। तो बेसिकली हम वो चीज देख देख के ही अपने आप को प्रोग्राम करते हैं उसके लिए। सो ये बहुत बड़ा कारण है। साथ ही हम क्या खाते हैं, व्हाट डू वी ईट। कई लोग बोलते हैं व्हाट गोज इन इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट कम्स आउट इज इंपॉर्टेंट, पर काका जी जो अंदर जाता है ना वही बाहर आता है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, नेक्टर इन, नेक्टर आउट। तो सिर्फ खाना पीना ही हमारा खराब होगा, हम राजसिक तामसिक चीजें खाएंगे, मीट खाएंगे, अंडे खाएंगे, उसका हम कहेंगे शुद्ध जीवन जिए। कैसे शुद्ध जीवन जियोगे सर? आपने अंदर का डेटा ही, हार्ड डिस्क में जब डेटा ही वायरस है तो डबल क्लिक में क्या आएगा? वायरस, सिंपल। सो खाना पीना हमारा ठीक करना चाहिए। साथ ही जुडिशरी के लेवल पर स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए कि जो रेप करेगा ना उसकी बॉडी में 1000 ब्लेड के कट लगाए जाएंगे और हर एक कट में आपको डाला जाएगा। ऐसी सजा होनी चाहिए ना कि अगर कोई रेप करने के लिए थिरकन भी आए बॉडी के अंदर, थिरकन वहीं शिथिल हो जाए उसकी, सिर्फ सजा को सोच करके। जो रेप करे उसके हाथ पांव घोड़ों से बांध दो और घोड़ों को अपनी अपनी दिशा में दौड़ो ताकि जॉइंट्स टूटे, और उसके बाद जो बचा हुआ शरीर उसका सेंट्रल टॉक्स बचा हुआ है
उसमें जो है उसकी बॉडी में कान खजूरी डालें, कट्स डालें, छोटे 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 छोटे, उसमें तेजाब डालें, एक एक नाइस। या फिर एक अच्छा ये रहेगा सजा, वो जो फिशेस आती है ना, क्या बोलते हैं उनको, पिराना। यस, शरीर की निचला हिस्सा जो है ना वो पिराना वो सौंप देना चाहिए, और जो आधा खा ले तो छोड़ देना चाहिए, फिर उसको बाहर निकालना चाहिए। फिर जहां जहां पिराना ने खाया है वहां नमक की पट्टी कर देनी चाहिए ताकि वो थोड़ा हील हो जाए। फिर उसको 2 महीने उसको हील होने दें, फिर उसको पिराना में डालें। ऐसे लाइफ लॉन्ग करें उसके साथ। नाइस। ऐसी दर्दनाक सजाएं दो रेपिस्ट को ना कि अगर कोई सोचे भी मैं रेप नहीं, बहन जी नमस्कार, ऐसा हाल हो जाए तो डर हालांकि अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन थोड़े हद तक सॉल्यूशन चाहिए होता है। भय बिना होवे प्रीत, भय चाहिए। जहां मैनेजमेंट है वहां भय चाहिए। तो इसलिए जब ऐसी सजा होगी ना रेपिस्ट की कि पिराना मछली से उसको कटवाएंगे, फिर थोड़ा हील कराएंगे नमक के साथ, फिर दोबारा दबाएंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर खाना डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, ऐसे तड़पा तड़पा के माना चाहिए कि वो भीख मांगे मेरे को मार दो ना। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। सो कानूनी लेवल भी ऐसा होना चाहिए। पर अलास हमारा जुडिशियल सिस्टम ही ऐसा ढक्कन है कि 3.5 करोड़ केस तो पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें रेपिस्ट भी मर गया, उसका विक्टिम भी मर चुका है। वाह। इसलिए पंचायत शिक्षण सिस्टम वाज गुड। हर जगह की अपनी पंचायत होती थी, वहां के समझदार लोग बैठेंगे पंचायत में, समझदार लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो चर्चा करेंगे सारी सब पहलू को देख करके, तब कोई केस पेंडिंग नहीं होता। आज इंडिया के अंदर 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है। बीच में कितने वोकेशंस हुआ थी कोर्ट की, कोर्ट 2 महीने के लिए छुट्टी पे है। वाह। और बाकी लोग कहते तुझे तड़को, ठीक है, गुड। सो जुडिशरी सिस्टम से मैं तो बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। सो वी शुड हैव लोकल सिस्टम्स जो कि वहीं के वहीं केस को रिजॉल्व करें, और सजा ऐसी अल्टीमेट होना बहुत जरूरी है। साथ ही शिक्षा का है हमारे यहाँ पे, इन आवर एंटायर सिलेबस there is not even a single chapter of how to respect opposite gender. एक चैप्टर को खोल के दिखा दे एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, है ही नहीं। So when it is only skill based education, no values है ही नहीं, honesty, sincerity, love, care, cooperation, भाड़ में गई ये सब चीजें। We should make skill India. No doubt skill India is good, but value India is even more important than skill India. पर values कहाँ है ही नहीं। फिर ये केस होते हैं, फिर एक होंगे, फिर हम कैंडल मार्च लेके जाएंगे, गलत है, स्त्री के प्रति अपमान हुआ है, फिर कैंडल मार्च लेके यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चले गए, कैंडल मार्च कर ली, वहां समोसे खाए आपने, कौन सा सॉरी ऐसे हो गया, समोसे खाए हमने, चाय पी, चाय की चुस्कियां हुई, बस। फिर 3 महीने बाद दिल्ली में हो गया, दिल्ली में रेप केस, कहां है मोमबत्ती, मोमबत्ती कहां है, मोमबत्ती लेके फिर चल दे, गलत है ये, गलत है, कब तक स्त्री का अपमान होगा। इस बार क्या समोसे कचौड़ी है, इस बार ढोकला भी, ढोकले के लिए तो आए थे अपन लोग यार, और क्या नहीं तो कब तक ये ढोकला खोखला काम करते रहेंगे हम लोग, ये कैंडल लाइट मार्च करके, मतलब ये कोई सोल्यूशन है सिवाय नौटंकी बाजी की और कुछ भी नहीं है। कैंडल मार्च कुछ नहीं, नो सोल्यूशन एट ऑल। बट व्हाट दे कैन डू, व्हाट एल्स दे कैन डू, क्या करेंगे? यस सबसे पहले तो हमें सिस्टम चेंज करना है, वी हैव टू अटैक द रूट। हमें सरफेस से काम नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पिंपल आता है, एक सोल्यूशन है क्लीन एंड क्लियर, अल्ट्रा क्लैरिटी। देखिए पिंपल यहां से गया, फिर यहां निकला है, फिर यहां लगा है, फिर यहां से निकला है। समझदार डॉक्टर कहेगा जी आपको ब्लड प्यूरिफायर इस्तेमाल करिए, आपका खून गंदा है, खूब आम खाएं, मिठाइयां खाएं, एंटी डब्बा हम ही साफ करते थे, तो काका जी पहले अपना खून साफ करो, तो ब्लड प्यूरिफाई होता है, पिंपल गायब। तो कौन सा सोल्यूशन अच्छा है, अल्ट्रा क्लैरिसिल वाला या ब्लड प्यूरिफाई वाला? काफी कठिन सवाल। ब्लड प्यूरिफाई, अटैक द रूट। तो समस्या को अगर देखना है हमें, उसके जड़ से खत्म करना है, उसको जड़ से ऐसे खत्म होती है। तो ये चेंज करेंगे देन थिंग्स विल चेंज। नहीं तो ये होता रहेगा, केस होते रहेंगे, रेप केस हो गया, कितने दुख की बात, कितने दुख की बात। फिर हम भी चाहे पकौड़े खाते हुए, पराठे खाते हुए मारो खराटे हो गया, फिर हो गया 1 महीने बाद, गलत, कितना गलत हो रहा है इस जगत के अंदर, बस यही करते रह जाएंगे। तो ये पछतावा इज नॉट द सॉल्यूशन, वी हैव टू ब्रिंग सम चेंज। तो रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे वी हैव टू ब्रिंग चेंज, देन समथिंग विल हैपन। ठीक है जी, हाँ जी, और हाँ जी, वहां नॉर्थ पोल, यस, हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था, बड़ी बुलंद आवाज आती है।
कृष्णा सर। सर आपने अभी अपने मोटिवेशन टॉक में बताया कि जो इस्कॉन वाहिनी में भी लोग आते हैं, दे कम टू डिटॉक्सिफाई देयर रूटीन लाइफ। Yes. कि दिन भर जो उनको टॉक्सिसिटी चढ़ी है उसको काटने के लिए आते हैं। सर आई वांट टू आस्क कि वो लोग इतनी टॉक्सिक जी क्यों है? मींस इफ इन फर्स्ट प्लेस दे डोंट चूज टू डू दैट जॉब और डू दैट वर्क। कौन टॉक्सिक है? Sir, the people that come to detoxify themselves, अगर वो फर्स्ट प्लेस में चूज ही नहीं करेंगे कि हमें टॉक्सिक काम करना है, फिर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना है, then why still they choose to live? देखो होता क्या है, when you get onto the battlefield, you should wear the armor. ठीक है जी, युद्ध क्षेत्र में जाएं तो कवच पहन के जाएं, पर आप पहन के जाएंगे क्या? लीवाइस की जीन्स, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन की टी-शर्ट और रेड टेप के जूते और ऐसे करने चले जाएंगे, ए गाइस, और फिर आपको तीर पड़ते छक 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 छक, फिर आप घायल होके आते हो राधा माधव, फिर आपको डिटॉक्स याद, आपके तीर निकाले आते हैं। सो लाइफ में अटैक तो होंगे, पीपल विल अटैक, नॉट फिजिकल अटैक बट वर्बल अटैक, सिचुएशनल अटैक, ऐसे होते हैं। पर हम आर्मर नहीं पहनते स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का, वो करेंगे देन यू वुड बी एब्सोल्युटली बिंदास। बट फिर भी अगर ऐसा होता है दैट स्टिल यू गॉट सम वुंड्स, God's grace is very helpful in recovering from the wounds, especially emotional wounds. We need grace of God. इसलिए लोग आते हैं कि सर थोड़ा जख्म हुआ है, थोड़ा प्रभु का नाम सुनेंगे, हीलिंग, इसीलिए। ठीक है जी, अगला सवाल। हरे कृष्ण गुरु। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि ओवर थिंकिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है, प्रोक्रास्टिनेशन की। यस। तो उसके ऊपर हम एक्चुअली ओवर थिंकिंग ये एक अलग प्रॉब्लम है। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कि हम कल करते हैं, जी सर, कल, ठीक है, मैं इसका जवाब कल देता हूं, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन, लोग प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? कल क्यों करें? कल हमारे युग का नाम है कलयुग, हमारे युग का नाम आज युग होता तो हम आज करते हैं, पर युग का नाम ही है कल युग, कल करेंगे यार। सो प्रोक्रास्टिनेशन का बहुत बड़ा कारण है अटैचमेंट टू कंफर्ट जोन। जितना ज्यादा आप कंफर्ट जोन से अटैच हैं, आप कल पे पोस्टपोन करते रहेंगे, कल तो पढ़ेंगे ना, कल पढ़ेंगे, अभी आज अरे नेटफ्लिक्स पे कल की देखेंगे, हालांकि उसका नाम कल की है लेकिन उसको करेंगे आज की। लाल सिंह चड्ढा कब देखेंगे? आज पढ़ना कल। So this shows that you are attached to comfort zone. तो comfort zone से attached रहेंगे तो भी हम तो procrastinate करेंगे। साथ ही to do list होनी चाहिए, आज मुझे क्या करना है। और किसी पूछा आज बाकी 12 घंटे कैसे हैं, देखेंगे, हम देखेंगे। नहीं सर, पहले जॉट डाउन करो फिर देखो। So हमारे पास कोई प्लान भी नहीं होता लाइफ के अंदर, इसी वजह से भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। साथ ही टाइम वेस्ट हम क्यों करते हैं? बिकॉज इवन टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी को भी टाइम एलोकेटिंग हम नहीं करते। फॉर एग्जांपल YouTube शॉर्ट देखना, इट्स अ टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको टाइम एलोकेट करें। शाम को 5 से 5:30 मैं टाइम वेस्ट करूंगा, मैं इंस्टाग्राम रील्स देखूंगा, पर आप उसको टाइम एलोकेट नहीं करते, फिर वो पूरा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा खा गया, फिर पढ़ाई कल करते हैं ऐसा। साथ ही बहुत कारण प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, कोई चीज ना आपको दिक्कत दे रही है, थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा कठिन है, तो पहले वो काम करें जो आप अच्छे से कर सको, उससे आपको इंस्पिरेशन आती है, गुड मैन यू कैन डू वेरी गुड, देन यू डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। साथ ही व्हेन यू स्टार्ट रिपोर्टिंग व्हाट यू आर डूइंग, रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट करते हैं देन आल्सो इट इज वेरी हेल्पफुल कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने पूरा नहीं किया, यू गिव द राइट टू द अदर पर्सन कि आपको स्क्रू करे, आपके पेज कस दे, जरूरी है। सो रिपोर्टिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू किल द प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है जी, ओके। और यस, हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे अभी आपने बताया कि ज्यादा सोचने से ओवरथिंकिंग होती है। हाँ बिल्कुल जी। तो अब कोई सिचुएशन है जिसमें हमारा ईगो भी आ रहा है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ रही है। ओह, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। फिर एक सवाल आप लोगों से, क्या ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट ये पर्यायवाची हैं या अलग अलग है? ये पर्यायवाची है। अगर मैं बोलूं हमारी भी तो कोई ईगो होती है, ये तो सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बोलता हूं, हमारी भी कोई सेल्फ एस्टीम है, ये सुनने में अच्छा लगा, पर एक्चुअली मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, मेरी भी कोई ईगो है,
थोड़ी उसकी रिस्पेक्ट कर लो. I need some ego pampering. पर मैं ये बोलूं मेरे भी कुछ ईगो पैम्परिंग करो. अरे कैसी भाषा बोल रहे हो? इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेडली बोलो. तो बोलेंगे I also have some self respect. I also have some self esteem. Respect is not demanded. Respect is commanded. Respect कभी मांगी नहीं जाती. आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपकी डीलिंग्स लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं. राइट? जब नहीं कर रहे यानी कि मैं कहीं ना कहीं ठीक नहीं हूं. मेरे को अपने आप को ठीक करना है टू द एक्सटेंट दैट दे रिस्पेक्ट. और वो नहीं भी कर रहे अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा. आई एम डूइंग इट एज अ मैटर ऑफ सर्विस. दैट्स इट. रिस्पेक्ट नोट्स नथिंग. लॉर्ड कृष्णा इज डिक्लेयर्ड एज एब्सोल्यूट ट्रूथ इन स्क्रिप्चर्स एंड ही इज गॉड ऑफ ऑल गॉड्स. बट इन कुरुक्षेत्र व्हाट रोल हैज ही टेकन? ड्राइवर का रोल किया भगवान ने. शॉफर. अब बोलते हैं जितने आज करोड़पति लोग हैं इनमें से कोई शॉफर बन जाएगा? नेवर. But Lord Krishna has taken the role of shopper. और पूरी महाभारत में सबसे अधिक रिस्पेक्ट किसकी है? भगवान कृष्ण. कहता भाई खेल लड़ाई जो मर्जी लड़ ले, लेकिन जीतेगा वही जहां कृष्ण है. Because he is a game changer. He is a game changer. Otherwise, Bhishma Pitama alone was so powerful that he alone could defeat Pandavas. पर यहां से भीष्म पितामह नहीं है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ये वो फला ढिमका, 100 पुत्र सब है. यहां 5 पांडव बस. जीता कौन? ये साइड में. क्यों? क्योंकि उस साइड में गेम चेंजर है. दैट इज कृष्ण. पर कृष्ण ने रोल क्या लिया पूरी महाभारत के अंदर? रथ हाँकने का. वाह. इज ही डिमांडिंग रिस्पेक्ट? नो. ही कमांड्स रिस्पेक्ट बाय हिज वेरी प्योरिटी, by his divinity, right? तो इसीलिए हमें भी ये नहीं बोलना चाहिए हमें सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी हो. अरे भाई देखो जो आपसे ईर्ष्या द्वेष करने वाले हैं आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करने वाले. आप चाहे कितने अच्छे हो जाओ, कितने प्योर हो जाओ, कितने कंट्रीब्यूटिंग हो जाओ, those who are envious of you, those who are jealous of you, they will not respect you. Those who are dull headed, they will not respect you. Those who are poor in expressing themselves, they will not respect you. Those who are insecure, कहते ये कहां से आ गया टैलेंटेड व्यक्ति, ये तुम्हारा यार पोजीशन खा जाएगा ये तो हैं. इनसिक्योर. ऐसे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने वाले नहीं है. अगर आप इसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, सर सर्टिफिकेट देंगे, मैं अच्छा हूं, मेरे को एक सर्टिफिकेट ऐसा ही चाहिए था सर, आपका दे देंगे, मिल जाएगा सर्टिफिकेट. कभी नहीं मिलने वाला. सो व्हेनेवर वी सीक वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड यू विल बी मिजरेबल. जैसा आप देखो फेसबुक है, यूट्यूब है, when we seek validation, likes आए नहीं आए, सब्सक्राइबर्स बढ़े कि नहीं बढ़े, अच्छे कमेंट्स कौन से आए, नेगेटिव कमेंट कैसे आ गए? अरे when we seek validation from outside आप दुखी रहोगे. like one YouTuber, उसने YouTube चैनल खोला, उसको गिटार आता है, गिटार में उसने गाने गाए, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके और गिटार बजा रहा है. बढ़िया. उसको लगा लोग कमेंट करेंगे, हाँ अच्छे कमेंट करेंगे, बड़ा अच्छा गाया तुमने. नीचे लोगों ने लिखा, अबे पतीले गिटार तो ठीक से पकड़ ले. एंड ही अटेम्प्टेड सुसाइड. ऐसे मेरे को पतीला बोला यार, मेरे को पतीला बोला यार, हमारे भी कुछ सेल्फ एस्टीम है. तो किन लोगों से ये वैलिडेशन यू आर सीकिंग? So when we seek validation from outside, you will be miserable. ठीक है जी? So do it because your guardians are happy. Do it because God is happy. Do it because those who actually need it, they are happy. That's it. बोल है. प्रभु खुश तो हम खुश. दुनिया जाए तेल लेने ऐश तू कर. ठीक है जी? So don't seek validation from outside. तो सब लोग आपकी ईगो पैम्परिंग करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट देख को आपको पैम्पर करेंगे, नहीं करने वाले. ठीक है जी? तो उंगली उठती है, सब पे उठती है. जब भगवान भी उंगली उठ जाती है, हम किस खेत की मूली गाजर, हम भी उंगली उठेगी. सो ओके. हाँ जी. और यस, और कोई सवाल पूछेगा? हाँ जी मैम प्लीज. With so many horrific incidents happening and so much news in the newspaper about all the horrific incidents, we are always overthinking about the safety of our loved ones. Suppose if they have gone out and their phone is switched off,
So we'll keep trying. I will get obsessed. We keep calling them till they pick up the phone. Always worried about the safety of the young girl. Yes. How to stop that? देखिए अगेन किसी की सेफ्टी की बात करें, हमारी सेफ्टी, हमारे परिवार वालों की सेफ्टी, लड़कियों की सेफ्टी, अल्टीमेटली वी शुड डू आवर बेस्ट। और लड़कियों की सेफ्टी, अकेले मत जाओ कहीं पर भी, जहाँ पर सेफ्टी मेजर्स नहीं है मत जाओ वहाँ पर, डोंट गो देयर। सेफ्टी मेजर्स पूरा ध्यान रखें अपने, अकेले ना जाएं, किसी के साथ जाएं। So we can take safety measures despite that something happens. So that is outside our control, right? तो जो हमारे कंट्रोल में है और हमारे कंट्रोल में नहीं, ये दो चीजें, इसके अलावा और कुछ होता है? होता है? एक जो हमारे कंट्रोल में है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं। So that which is in our control, should we worry about? That which is in your control, should we worry about that? Not worry about that. We can No. take measures to. बिल्कुल, because it is in my कंट्रोल। अच्छा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या उसकी चिंता करनी चाहिए? That's over. नहीं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। Yeah, we can't do anything. Yes, जैसे कोविड आया, ठीक है, हमारे कंट्रोल में था, आ गया वो तो बैठा छाती पे 2.5 साल, क्या करोगे? बियॉन्ड कंट्रोल। सो लाइफ में कुछ चीजें हैं जो कंट्रोल में है, उस पर काम करेंगे, और जो कंट्रोल में नहीं है उसको लेकर छोड़ देंगे। पर तनाव क्यों होता है, ओवर थिंकिंग होती है जब हम उन चीजों को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको खींच करके अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास करते हैं। दिस एक्सरसाइज, दिस एक्टिविटी ब्रिंग्स स्ट्रेस, राइट? बस तो लड़कियों का ध्यान रखें, घर परिवार अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा थोड़ी एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, शाकाहारी भोजन पाएं, अच्छे लोगों का संग करें। नाइस, फिर भी कुछ हो जाता है, कर्मा, लीव इट, मूव ऑन, नहीं तो उसी में रह जाएंगे हम लोग, ओवर थिंकिंग। Thank you. हाँ जी, पीछे बालकनी सीट वाले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो जी। यस, जैसा आपने बोला कि बी से हमें स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए, बट मैंने स्टार्ट करा था गीता पढ़ना, बट वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। हाँ जी। इज देयर एनी वे कि हम उसको रेगुलरिटी मेंटेन कर पाए? यस, नाश्ते से पहले पढ़ना है। नाश्ता होता है आपका? हाँ जी। बस कोई भी एक रेगुलर एक्टिविटी साथ जोड़ दो उसको, भी रेगुलर हो जाएगा। नाश्ता करने से पहले 10 मिनट पढ़ूंगा या नाश्ते के बाद पढ़ूंगा, मतलब भूख बदल लग रही है, पढ़ नहीं पा रहे, अरे भाई ये चूहे हाथी ना बन जाए, तो भाई काका जी थोड़ा कुछ खा लो, फिर पढ़ लो 10 मिनट, दैट्स इट। सो एक रेगुलर एक्टिविटी साथ जोड़ दो उसको, तो रेगुलर हो जाएगी वो। ओके, और दैट्स इट। और कोई सवाल? आखिरी सवाल किसी और को सवाल है? एक, किसी का और को सवाल है? 2, एक को 2। राधेश्याम, कोई ये जानना चाहता था कि मैं क्या करूं, कर्म का निर्धारण कैसे करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कर्म जब सोचते हैं तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। हाँ जी। कर्म का निर्णय कैसे करें और कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? ओके, कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? किसी बंधन से मुक्त होना, जैसे आपके हाथ में बंधन हो गया, ठीक है, बंधन है, इसको कौन खोल सकता है? जिसके खुद के हाथ बंधे हुए हैं, जिसके हाथ खुले हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो किसके हाथ खुले हुए हैं ये देखना है। हमारे कर्म बंधन में हाथ फंसे हुए हैं, मेरे आपके, हम सबके फंसे हुए हैं, तो जिसके हाथ खुले हैं वो खोल सकता है, वो है भगवान और उनके प्योर डिवोटीज, वो खोल सकते हैं। तो इसलिए अगेन दिस कम्स टू एसोसिएशन, सो दे कैन अनटाई अस। हम दलदल में हैं, दलदल से हम खुद बाहर नहीं निकल सकते, दलदल में जितना छटपटाओ उतना और धंसते जाते हैं। दलदल में रह करके एक ही तरीका होता है, वहीं पड़े रहो चुपचाप, हिलना नहीं, और पुकारो कोई है, अरे कोई है, फिर कोई आ जाएगा, हाँ जी, फिर वो रस्सी पकड़ाएगा, रस्सी पकड़ के आप बाहर आ जाओगे दलदल से, और दलदल में जाओ फिर दस के मर जाओगे, छटपटाना नहीं चाहिए उसके साथ। तो इसलिए अगर हम भी कर्म बंधन में हैं, दलदल में हैं, so somebody who is outside दलदल can take us outside दलदल, ठीक है, इस तरह से चलता है। Okay, thank you all very much. हरे कृष्णा। Okay, so there is one video for all of you. Please बैठ जाइए। Chocolate washroom, तुसी बैठ जाओ, everyone बैठ जाओ, sit down, sit down, sit down. तो एक कोर्स है Discover Yourself. ये कोर्स है from ISKCON Rohini. So here the video will be played for that.
और ये फ्री ओके। इसके वैसे तो कोर्स फी है इसकी 1 लाख रुपए, लेकिन 100% डिस्काउंट, फ्री फ्री फ्री। So video ready? So watch the video on about Discover Yourself 6-session course. Hare Krishna. Thank you. Your teachings will definitely help all of us, and I hope we all can learn from you. We are extremely thankful to you, sir, for sparing your valuable time for us and sharing your wisdom. Let us have a huge round of applause for sir. I request all of you to take 2 minutes and fill the feedback form right now. About the course, we would like to tell you that the course will be held on every Sunday on Zoom from 9 o'clock to 10 o'clock. With this, I would also like to thank our mentor, Vaikunth Chand Prabhuji, IVIF Director, ISKCON, Rohini. We are deeply grateful to Sir's unwavering support. Sir's constant guidance and presence has helped many to achieve their goals. And with this, we would like to felicitate Sir with a shawl. Gaurji, IYF preacher, for his continuous and never-ending support, guidance and contribution. Without Sir, this event would not have been possible to conduct. We hope our bond with Sir will always remain strong and continue to flourish. We would like to present a small token of our immense gratitude to Sir. Sir, we'd like to felicitate you with a token of appreciation. Now, I would like to call Dr. Meenakshi ma'am, HOD Blood Bank.
We would like to facilitate ma'am with a small token of Next, we'd like to thank Dr. Vivek Sagar sir, Head of Department Dermatology. Sir, you have always been a pillar of support, sir, and we'd like to felicitate you with a token of appreciation. इधर 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 बुलाओ, ऐसे घुमाओ भैया. Next, we would like to call Karsing sir, HOD Pathology. We would like to present sir with a small token of thanks. Now, we'd like to invite Dr. Vikas sir, Head of Department Ophthalmology. Sir, we'd like to felicitate you with a token of appreciation. It seems like sir has left early today, so now it's time for all of us to get ready with our poses. I request all of you to kindly stay seated in your position as it's time for a group photograph with Prabhuji. Wait. Yes. Ready. मोबाइल में खींचे. कृपया शांति बनाए रखें.